we have studied about the structure of testis. We know that when we observe the testis, we can see a partition here, and this partition is called testicular wall, and here the large compartments are testicular lobes are present in this large compartment and some specific ducts are originates from here. So, these are also called duct system, and we know that here we can see some specific covering on this structure like this, and this covering is called tunica vaginalis. The outer layer A and the inner layer B is basically called parietal and visceral layers. Then guys, the innermost layer, the internal layer which is present inside of vaginalis, that is tunica albuginea. So guys, here we can see the different coverings of this structure, and we can also see some specific covering on this testicular lobes, and we know that like all also. So, this is called tunica vasculosa. Each and every testicular lobe consists this covering. So, tunica vasculosa surrounds all the lobes, in fact which is present inside of this testis. And the new thing is here, we know that there were 250 to 300 number of testicular lobes. So, there were 250 to 300 number of testicular lobes inside of this structure, and it forms a duct system. Here we will talk about the duct system. So, this is the concept. Is it clear? Then you can write yes sir. When we observe the testis, we can see here a lot of tubes are here. We can see a lot of tubes, and these tubes are interconnected together. These tubes are connected together, and then it pass out from the testis, and each tubes are connected with each and every
testicular lobes. Okay. So, the main concept is here when we observe the duct system, the first duct is here, then the second duct is here, the third, the fourth duct and then fifth. What is the name of first duct here? It is called tubuli recti. B is testis, reti testis. C is vasa efferentia or efferent ductis. Both are same. And then D is called epididymis, and then epididymis moves outside of the testis and it forms vasa differentia. Okay, vas deferens. So, these are the structures which are associated together and form a duct system. So, that is the thing for which I am talking about: tubuli recti, reti testis, vas deferens, vasa efferentia, epididymis and vas differentia. Okay. So, this is the duct system. Is it clear to everyone? Okay. Okay. So, let us move towards the next concept. Okay guys, we will talk about epididymis and other structures also. Let us first move towards the testicular lobes then. So, the next concept, the next heading is structure of testicular lobe. Take a screen. What inside of a testicular lobe? If we draw a testicular lobe here, we can see the outermost covering. It is surrounded by some specific layer. We know that there were 250 to 300 lobes. So, we are going to examine a single lobe. What's inside of a single lobe? Okay. So, the single lobe is look like this. Its outermost covering is tunica vasculosa, and when we move inside, we can see some tubes like this, and like this, and some space around of this structure Here we can see some specific structures. Like this, some triangular cells are here. Actually, it is not look like a triangular. It is just for a special sign here. Okay, like this. And guys, here we can see some other structures also. Here we can see some cells like this star, which is present inside of this lobe everywhere.
So when we tubule, so the question is seminiferous tubule is present. Seminiferous tubule is present. The answer is seminiferous tubule is present inside of testicular lobe. Seminiferous tubule is present inside of testicular lobe. तो ऐसा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाया जाता है. आपका आंसर होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब के अंदर होता है. तो हमने अभी आपको बताया सबसे पहले कि जो टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस के ऊपर डबल कवरिंग है ट्यूनिका वजाइनलिस की. उसके बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है. फिर बताया कि टेस्टिस में 2 कंपार्टमेंट होते हैं. इतनी बार बता दिया है कि हमें लगता है कि अब तो सबको रट गया होगा, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए. कंपार्टमेंट में जो लार्ज कंपार्टमेंट है उसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं. इन टेस्टिकुलर लोब्स की नंबर 250 से 300 के आसपास होते हैं और इनके ऊपर ट्यूनिका वेस्कुलोसा की कवरिंग होती है. तो 3 लेयर्स हो गए, एक वजाइनलिस, एक एल्ब्यूजिनिया और एक यहाँ पे वेस्क्यूलोसा. ये 3 लेयर्स हमें याद रखने हैं. फिर आपको बताया कि हर जो टेस्टिकुलर लोब्स हैं उससे कनेक्ट होकर के एक डक्ट निकलती है और ये डक्ट जो है डक्ट सिस्टम बनाती है. इस डक्ट सिस्टम में सबसे पहले आता है ट्यूबुलाई रेक्टाई. फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई से चीजें चलती हैं रेटी टेस्टिस में, फिर रेटी टेस्टिस से जाती हैं ईफेरेंट डक्टिस में. ईफेरेंट डक्टिस का ही दूसरा नाम है वासा एफरेंसिया. और वासा एफरेंसिया जो है यहां से चीजें जाती हैं एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस का भी अपना कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे. और वहां से ये डक्ट सिस्टम बाहर निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया. सो वासा डिफरेंसिया एंड वासा डिफरेंशिया बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्स हैं. फिर हम लोगों ने बात किया कि अगर एक टेस्टिकुलर लोब, ये जो इतने सारे लोब्स हम देख रहे हैं, इसमें से ये जो इतने सारे लोब्स आप देख रहे हो उसमें से किसी एक लोब की बात कर लें तो इस टेस्टिस में क्या होता है पता चल जाएगा. तो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग इनसाइड ऑफ द टेस्टिकुलर लोब. एंड व्हेन वी मूव इनसाइड ऑफ दिस लोब वी कैन सी द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज वेस्क्यूलोसा. इज इट क्लियर? सो लीव दिस. And when we move inside of this structure, we can see the 3 tubules inside of this. And there were some specific cells which looks like a triangular shape here and some other structure. So, testicular lobes consist 3 basic things. The first thing is seminiferous tubule. The second thing is Leydig cells. And the third thing is connective tissue. So there are 3 components present inside of testicular lobes. Is it clear? Then you can write yes sir inside of the comment box. Then we will move. तो 3 चीजें हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, लेडिक सेल है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है. 3 चीजें यहाँ पे हमें मिल रही हैं. थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, आगे चलते हैं. तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है. अब जरा थोड़ा एक चीज देख लो. एक्चुअली क्या होता है कि टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर जब देखोगे तो ये तुम्हें जो 1, 2 और 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शुड बी 1 to 3. होता क्या है कि किसी किसी टेस्टिकुलर लोब में, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है. तो ऐसा कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्स. तो ये बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्स में सेमनीफेरस 1, 2 या 3 हो सकते हैं. ठीक है, 1, 2 या 3. मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 3 होगा. और
इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास जो स्पेस देख रहे हो तुम लोग, ये वाला, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसी स्पेस में जो सेल है, द सेल प्रेजेंट इन दिस स्पेस लाइक दिस, सो दिस सेल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। तो इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। अब बताओ ये सेल कौन सी है? ये वही लिडिक सेल है। तो लिडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। लिडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे। ओके, हियर seminiferous tubule, second Leydig cell, third connective tissue। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली फंक्शन तो यही है कि कनेक्शन करना। तो भाई इसको तो हटा ही देते हैं हम लोग, है ना। ये कनेक्ट करने का काम करता है, सबको आपस में अटैच करता है ना। मेन चीजें दो हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि लिडिक सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है या बाहर? आप बताओ मुझे कमेंट में कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लिडिक सेल अंदर पाया जाता है या बाहर? वो आउटसाइड पाया जाता है। इसीलिए चूंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो इसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहेंगे, है ना। तो जो लिडिक सेल है उसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं बेसिकली। और ये इंटरस्टिशियल सेल क्या सिक्रीट करता है? इसका काम होता है निकालना, सिक्रीट करना एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जो बेसिक मेल हार्मोन है। इट इज अ मेल हार्मोन। So the basic male hormone which is called androgen or testosterone secreted by interstitial cell or Leydig cell which are found inside of testicular lobes। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं यहाँ पे, inside of the testicular lobes but outside of seminiferous tubule। Okay, so this is the concept। So guys, let's move inside of the seminiferous tubule। When we move inside of the seminiferous tubule, अभी इस टेस्टिकुलर लोब के अंदर गए, अब इस ट्यूब्यूल के अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस ट्यूब्यूल को काटते हैं। ये जब हमने इस ट्यूब्यूल को काट दिया, ये वाला हरा वाला, तो इसके अंदर हमें इस तरीके से ऐसे सेल दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर कुछ चीजें बन करके बाहर आती हैं, फिर ये तीनों ट्यूब्यूल्स की चीजें बाहर आती हैं, फिर टेस्टिकुलर लोब से होती हुई बाहर निकलती हैं। और एक लोब से चीजें बाहर आएंगी, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे से, चौथे से, ऐसे करके 250 से निकल के ये डक्ट में जाती हैं और डक्ट सिस्टम से बाहर आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है। व्हाट इनसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंसिस्ट टू टाइप ऑफ द सेल। ओके, सो फर्स्ट इज कॉल्ड germinal cell which is also called primordial germ cell। The primordial germ cell, basically primordial germ cell, it forms male gamete, it means sperm। We will talk about the formation of sperm। So germinal cells, primordial germ cells form male gamete।
male gamete, primordial germ cell, it forms male gamete, and androgen forms with the help of Leydig cell. And the second structure present inside of seminiferous tubule is called Sertoli cell. Sertoli cell. And Sertoli cells are also called sustentacular cell. And sustentacular cell is also called nursing cell. So there are different names for this, and it works for two functions. First, provide nutrition. It works for providing nutrition, and it forms ABP. We will talk about what is ABP. So this is the concept. This is the concept what inside of testicular lobes. So when we move inside of the seminiferous tubule, we can see germinal cells or primordial germ cells. Primordial germ cells form male gamete actually, and Sertoli cell, which is called sustentacular cell, and sustentacular cell form is basically called nursing cell because they provide nutrition to the male gamete, and they also form ABP, androgen binding protein. And Leydig cell, interstitial cell, it can form male hormones, androgen and connective tissue. So what is the concept of ABP? Actually ABP is called androgen binding protein. Actually the concept is here. So let's suppose this is the structure of seminiferous tubule. Okay, so the gamete are producing inside of the seminiferous tubule, and nursing cells are also present inside of this structure, and the male gamete is present outside of this structure. So if this gamete if the germinal cell need male hormone, so how it is possible the male hormone is here and it reaches towards the germinal cell? So Sertoli cell are very helpful. Sertoli cell produces androgen binding protein. This is the specific protein which can receive the androgens from outside. They receive the androgen from outside, and after receiving the androgen they can transfer this androgen to this germinal cell, and after getting androgens the germinal cells activate, more and more activate, and they can form more and more hormones. So each and every concept is related with each other. तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना इस तरीके के सिस्टम पे बेस्ड है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इंडिविजुअली रह करके इसमें काम कर जाए, पॉसिबल नहीं है। अब सर्टोली सोचे कि वो अकेले इंपॉर्टेंस ले ले, जर्माइनल अकेले हो जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इन सब को कनेक्ट करने वाला है ये कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन तो सिंपल है कि भाई टेस्टिकुलर लोब्स में जितनी चीजें हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इस लोब के अंदर दो चीजें बचती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और दूसरा लेडिक सेल। चूंकि लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो इंटरस्टिशियल सेल कह रहे हैं, और ये एंड्रोजन निकाल रहा है। अब ये एंड्रोजन अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो ये एंड्रोजन तो बाहर ही है ना, अंदर तो आ नहीं रहा, तो अंदर कौन लाएगा इसको, यहां अंदर कौन लाए भाई, अंदर चाहिए तो ये कैसे होगा। तो ये काम करने के लिए जो सर्टोली सेल्स हैं, जो सस्टेंटाकुलर सेल्स हैं, जो नर्सिंग सेल्स हैं, ये निकालती हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहां से बाहर से एंड्रोजन को रिसीव करके जर्माइनल तक पहुंचा देता है। और जब ये जर्माइनल सेल को एंड्रोजन प्रोटीन देता है, हार्मोन देता है, तो जर्माइनल सेल एक्टिवेट हो जाती है। एपिथेलियल जर्माइनल सेल है तो एक्टिवेट होगी और खूब ज़्यादा एक्टिवेट होके ये प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो मेल गैमेट बनाती हैं। और जब ये मेल गैमेट बनाती हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। मैंने अभी बताया कि टेस्टिकुलर लोब्स कैसे कैसे होते हैं, तो चलो जरा शुरू से मैं समझा देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, फिर इसके आगे की बातचीत आगे करेंगे। 2-4 मिनट है अपने पास, चूंकि क्लास ओवर होने वाला है। तो देखो, ये अभी बताया कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर कवरिंग है, यहाँ पे लोब्स हैं, लोब्स के ऊपर की कवरिंग, और ये डक्ट सिस्टम। यहाँ तक तो पक्का है एकदम अच्छे से। यस सर लिखते जाना जहाँ जहाँ समझ में आ गया है। फिर बात हुई कि ये डक्ट सिस्टम होता है जिसमें ट्यूबलाई, रेक्टाई, रेटी टेस्टिस, ये और इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ तक पक्का है? बोलो भाई। चलो चलो ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट, टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर 3 चीजें हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू, 2 लिडिक सेल, और तीसरा सेमनीफेरस। सेमनीफेरस 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यहां तक तो क्लियर है। अब हमने देखा कि जो सेमनीफेरस है, जो लिडिक सेल है और जो कनेक्टिव है, उनका फंक्शन क्या है। तो कनेक्टिव का फंक्शन तो क्लियर है, इसको हटा दो। लिडिक सेल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि ये जो लिडिक सेल है, ये लिडिक सेल बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल कहलाती है, और ये बनाती है एंड्रोजन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही मेल का मेन हार्मोन है भाई, ये तो सबको पता है, कई बार बताया है, इसीलिए सेकेंडरी कैरेक्टर भी पढ़ाए थे। ये नहीं बनेगा तो सेकेंडरी कैरेक्टर कहाँ से आएगा। तो जब बच्चा 12-13 साल का हुआ, 14 साल 15 साल, तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आ गए उसके अंदर, और वो कैरेक्टर्स इसी हार्मोन की वजह से हैं। अब अंदर क्या हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल्स हैं, एक तो गैमेट बनाने वाली और दूसरी उसको न्यूट्रिशन देने वाली। अब ये उसको न्यूट्रिशन तो दे रही है, ये तो ठीक है, और इसके कई सारे नाम भी हैं, जैसे सर्टोली सेल, सस्टेंटाकुलर सेल, नर्सिंग सेल। ये साथ ही साथ एक हार्मोन रिसीविंग प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाहर से एंड्रोजन को पकड़ के अंदर जर्माइनल सेल को दे रहा है। ये बाहर से, सपोज करो मैंने अभी समझाया कि ये मान लो कि तुम्हारा कुरियर है, कुरियर, और ये तुम्हारा घर है, तो कुरियर तुम्हारे घर तक कौन लाएगा, कुरियर बॉय लाएगा। ये कुरियर बॉय है, इस कुरियर बॉय का काम है कि यहां से कुरियर ले और आपके घर तक पहुंचा दे, यही काम ये कर रहा है। तो इस तरीके से एंड्रोजन हार्मोन को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिसीव करता है और फिर जर्माइनल सेल को दे देता है, और फिर जर्माइनल उससे एक्टिवेट होती है, सुपर एक्टिवेट होती है, और खूब ढेर सारा मेल गैमेट तैयार करती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो भाई तुम लोगों के कहने पे मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार सब कुछ अच्छे से बता दिया। ठीक, अभी तो सबको क्लियर हो गया है। चलो, सबको क्लियर है तो आज की क्लास का समय हो गया कंप्लीट। आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें सीखी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट इसकी लेके कॉपी पे अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स रहता है तो बहुत फायदा रहेगा। अभी भले याद हो गया हो, 4-5 दिन बाद सब भूल जाता है, तो इसको याद रखना है। क्लास में आने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करेगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए आप सबको। थैंक यू।